رمضان کی راتوں میں کئی ایسی راتیں ہوتی ہیں جو عام راتوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ کا ماننا ہوتا ہے یہ خاص رات وہ راتیں ہیں جن میں خوب عبادت کی جاتی ہے، تو کچھ کے نزدیک یہ وہ راتیں ہیں جو خود میں کئی راز چھپائے رکھتی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے یہ رحمت لے کر آتی ہے، تو کچھ کا کہنا ہے کہ کئی ہزار مہینوں سے زیادہ افضل یہ ایک رات ہوتی ہے۔ یہ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں شب قدر کی رات کی۔ مگر سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی جانتے ہیں کیا راز چھپے ہوئے ہیں اس رات کے؟ ایسے کئی سوال کئی لوگوں کے ذہن میں گھوم رہے ہیں، اور آج ہم ان تمام سوالوں کو لے کر موجود ہیں شیخ محترم کی بارگاہ میں، اس کوشش میں کہ اس رات سے جڑے ہر راز پہ سے پردہ اٹھایا جائے، اور جو بھی آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات آپ تک کا پہنچائے جائیں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے ناظرین کا، واٹس ایپ کمیونٹی میں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس شب قدر کو لے کر کے بہت سارے سوالات بھیجے، اور آپ میں سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو اب تک ہماری واٹس ایپ کمیونٹی کو جوائن نہیں کیے ہوئے ہیں اور اس کا فائدہ نہیں لے پا رہے ہیں، جس کمیونٹی میں آپ سیدھے شیخ محترم سے روزمرہ سوال کر ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارے ادارے کی کئی ساری اپڈیٹس وہاں پر آپ کو روزمرہ ملتی رہتی ہے۔ تو ابھی جوائن کریں، ڈسکرپشن میں لنک دی ہوئی ہے، اس لنک پر کلک کریں اور ہماری واٹس ایپ کمیونٹی جوائن کریں۔ چلے جی، اب آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں شب قدر کے راز و اسرار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ایک ضروری موضوع پر، اور جو بہت قریب ہے ہم لوگوں سے، کچھ بچوں نے سوالات کی شکل میں اس کو لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں گے اس کو باریکیوں سے اس کے ظاہری اور باطنی پہلو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ جی جی پیر صاحب، اکثر جو سوال ابھی ہمارے پاس جمع ہوئے ہیں ہماری واٹس ایپ کمیونٹی سے، موسٹلی کچھ ہی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور زیادہ ہی اچھا ہوگا اگر آپ اس موضوع کے جست کو جو آیت بیان کرتی ہے اس آیت کو سناتے ہوئے اور اس کی تھوڑی اگر تفسیرات بیان کر دیں۔ آج جو یہ موضوع ہے وہ لیلۃ القدر کے تعلق سے۔ سورہ قدر جو ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ جی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر فضیلت اور برکت، اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں رات میں فرشتے اور روح الامی یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت اور کے ساتھ نازل ہوتے ہیں فجر کے وقت تک۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی فجر کے وقت تک، یعنی غروب شام سے لے کے صبح تک۔ اب یہ ہے کہ شب قدر ہے کیا چیز، اس میں کیا خاص نکات ہیں، کیا باریکیاں ہیں، اور یہ کیوں یہ فضیلت والی رات مانی جاتی ہے۔ جی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے آخری عشرے، یعنی آخری 10 دن کا جو عشرہ ہے، آخری عشرے کے اندر پاک 5 راتوں میں
लैलतुल कद्र को तलाशने का हुक्म है। जी समझ आए? बनी इसराइल का एक वाकया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे कि बनी इसराइल में एक शख्स ऐसे गुजरे हैं जिनका नाम शमऊन रदी अल्लाह ताला अन्हु है। शमऊन, हजरत शमऊन। अल्लाह तबारक व ताला ने इनको तवील उम्र अता फरमाई, बहुत लंबी उम्र इनको अता फरमाई। इनका काम ये था कि ये दिन भर रोजे के साथ होकर जिहाद फी सबीलिल्लाह करते और रात को शब्बेदारी करके जिक्र इलाही करते। जी बहुत लंबी इनकी उम्र रही जी। और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको वो खूबी अता फरमाई थी कि कोई भी तीर, तलवार, भाला या बर्छा उस दौर में जो भी सामान्य हर्ब थे इन पर असर नहीं करता। और ये अल्लाह तबारक व ताला और उसके दीन के लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह करते, यानी दिन भर रोजे रह करके जिहाद करते और रात भर मुसल्ले पर इबादत करते, यानी पूरा दिन रोजे के साथ घोड़े के पुष्ट पर जी और रात भर मुसल्ले पर। समझ आया? दिन गुजरता मैदान जिहाद में और रात गुजरती मुसल्ले पे। ये मैदान में जिस तरफ भी जाते इतने ताकत अल्लाह ने इनको अता फरमाई थी, कोई मुकाबला कर ही नहीं पाता। तो दुश्मन के तमाम जो लश्करी थे जी वो हैरान थे कि इनका मुकाबला किया किस तरीके से जाए, कि ना इन पर तीर असर करती, ना तलवार असर करती है, या वो हरबो जर में भी बहुत माहिर है, उसके दांव पेच के भी। तो इनसे तो थोड़े दिनों के अंदर हमारा सफाया हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि हर मर्द की कमजोरी एक औरत जरूर होती है। सही। तो दुश्मनों ने साजिश किया और इनकी अहलिया से मिले, जो एक दुनिया परस्त औरत थी। जी एक दुनिया परस्त औरत थी। उसको, उस औरत से, हजरत शमून की बीबी, उनकी अहलिया से मिले ये लोग और उसको इन लोगों ने सोने और जेवरात की लालच दिया। औरत की जिंदगी में सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो जेवर और सोना, सोना व चांदी इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है। तो अब जाहिर सी बात है, अगर किसी को बागी बनाना है, गद्दार बनाना है, तो उसकी कमजोरी जानना पड़ेगा। तो एक औरत होने के नाते औरत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? लालची होना, और वो भी सोने और जेवरात की, है ना। तो इसमें वो लोग कामयाब हो गए। ये इनकी अहलिया जो है राजी हो गई। क्या हो गई? राजी हो गई। हजरत शमून रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो बीबी है वो राजी हो गई कि आप लोग हमको इतना सोना चांदी या जेवरात या रकम दो और हम जो है इनको क्या करेंगे। तो दुश्मनों ने कहा कि उनको रस्सियों में आज जब रात में सो जाएंगे कुछ लम्हे के लिए जी, कुछ पल के लिए जो सोते हैं, तो आप एक काम करना कि इनको रस्सियों में बांध देना। अब ये जालिम बीबी, ये दुनिया परस्त बीबी, बहुत सारी औरतें आज भी ऐसी है कि उनके सामने शौहर पूरी जिंदगी कमा कमा के थक जाए, मगर जहां जेवर और सोने की बात आती है तो उस पर आदमी भी कुर्बान कर देती है। हाँ जी, ये बहुत बड़ी कमजोरी, ये तारीख रही है औरतों की कमजोरी की। हाँ, कि इस डिपार्टमेंट में औरत बहुत कमजोर होती है। इन लोगों ने इसी का फायदा उठाया। आखिरकार वो सोने और जेवर के बदले में इसने हजरत शमून रदी अल्लाह ताला को रस्सियों में उसने जकड़ दिया, बांध दिया चारपाई के साथ। अब जब हजरत बेदार हुए तो देखे खुद को आपने रस्सियों में बंधा हुआ पाया। समझ आया? तो आपने सिर्फ अपने बदन को हल्का से ऐसा टाइट किया था, धड़ाधड़ करके सारी रस्सियां टूट गई। और बीबी से पूछे कि ये किसने, क्यों मुझे बांधी तूने चारपाई के अंदर, रस्सियों से क्यों बांधी तूने? तो कहते हैं कि घोड़े का चक्कर और औरत का मक्कर से अल्लाह ही बचाए। यानी औरत, घोड़ा
कितने चक्कर लगाएगा ये कोई अंदाजा नहीं कर सकता। और औरत की मक्कर, घोड़े का चक्कर और औरत का मक्कर से खुदाई की पनाह हमें मांगो। हाँ, तो उसने मुस्कुरा कर कहा कि अय मेरे सरताज, मैं तो आपकी ताकत देख रही थी कि दुश्मन मैदान जिहाद के अंदर तुमसे हार जाते हैं, तुम्हारे पास कितनी ताकत है। देखो कितना हसीन बहाना उसने बनाई, मुस्कुरा के। कहते ना कि आदमी औरत की एक मुस्कुराहट में कुर्बान हो जाता है। जी, यानी इसने अपनी इस खता को इस मुस्कुराहट में उसने छुपा लिया। आखिरकार दुश्मनों ने जब उससे मिले तो उसने कहा कि अरे भाई, तो तूने बांधी नहीं? अरे बांधी तो थी मैंने, मगर अल्लाह ने इनको इतनी ताकत दिया, खाली इन्होंने ऐसा बदन अपना थोड़ा जुम्बिश दिया तो धड़ाक से सारी चटाचट से रस्सियां टूट गई। तो दुश्मनों ने कहा कि अब एक काम कर, रस्सी तो उनसे टूट गई, अब आज रात में जब वो कभी सोएंगे तो उनको जो है लोहे की सीकर में, जंजीर में बांध देना। दूसरी शब्द, जब हजरत सोए तो ये अय्यार और क्या नाम है, ज़रपरस्त औरत ने इस अल्लाह के मुकर्रब बंदे को, है ना, जंजीरों में उसने बांध दी। पहले पता चलने के बाद, यानी देखो, मतलब ढिठाई और क्या नाम है, घाघपन तो देखो, बहादुरी तो देखो। यानी आदमी जब कहते हैं कि दुनिया की मोहब्बत और जर और जमीन, इन सब चीजों की मोहब्बत जब गालिब हो जाती है तो किस हद तक किया जा सकता है, आप अंदाजा कर लें। शौहर अपना है, जंजीरों में उसने बांध दी। जंजीरों में बांधने के बाद जब हजरत बेदार हुए तो आपने खुद को जंजीरों में बांधा हुआ पाया। जी, अपने आप को जंजीरों में बंधा हुआ पाया। और जब फिर आपने थोड़ा बदन को टाइट किया, झटका दिया, तो जंजीरें भी चटाचट करके सारी जंजीरें एक एक सीकर टूट गई। अल्लाह। अब ये तो हैरान हो गई, बोले यार ये आदमी है कि है क्या। फिर हजरत ने क्या नाम है पूछा कि तूने ये क्या किया? तो बोले अरे मेरे शौहर, फिर मुस्कुराई, फिर वही अय्यारी की मुस्कुराहट कि मैं तो ये जांच रही थी कि आप रस्सी तोड़ चुके हैं तो क्या जंजीर भी तोड़ सकते हैं? क्या आप के अंदर इतनी ताकत है, जंजीरें भी तोड़ सकते हैं? झूठ की भी हद नहीं, है ना। तो हजरत के मुंह से निकल गया कि ये बिल्कुल जंजीर भी हमारे सामने कुछ भी नहीं है। फिर उसने एक अय्यारी की चाल चली। तो उसने कहा फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसमें अगर आपको बांध दिया जाए तो आप जो है मजबूर हो जाएंगे? तो कहते हैं कि जब औरत मर्द के पेट से कुछ निकालने पे आ जाए, ये बेचारा तो मोहब्बत का प्यासा, और वहां एक जहर भरा हुआ दिल में, आपके दिल से, जो कि अल्लाह का वली यकीनन सादा दिल होता है, वो जैसा खुद होता है हर एक को समझता कि वैसे ही होगा। और ये तो बीबी ठहरी। आपने कहा कि मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बांध सकती है, कितने भी मजबूत से मजबूत तुम शिकर बांध दो तो भी मैं तोड़ दूंगा, सिवाय ये मेरे बाल। आपके जो गेसू थे, आपके बाल बहुत बड़े बड़े थे, जमीन तक आते थे। आपके बाल इतने बड़े बड़े थे जमीन। और कुछ किताबों में मिलता कि आपके जिस्म में बाल भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन जिस्म में बाल हो या ना हो मौजू वो नहीं है। बाकी आपके जो बाल शरीफ, आपके गेसू जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे, और उसकी 8 लटें थी। कितनी? 8 लटें थी। तो आपने कहा कि मुझे अगर कोई इन बालों में अगर कोई बांध दे तो फिर मैं नहीं खोल सकता हूं। फिर ये जालिम औरत ने तीसरी रात में हजरत शमून रदी अल्लाह ताला अन्हु को आपके ही गेसों में उसने जकड़ दिया। और सुबह जब बेदार हुए तो आपने खुद को अपने ही बताए हुए राज, अपने ही गेसुओं में जकड़ा हुआ खुद को आपने पाया, और फिर समझ गए, जबकि ये अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली थे। जब बीवी आई फातिहाना मुस्कुराहट के साथ तो आप समझ गए कि ये गद्दार है, इसने दुश्मनों से मिलकर मेरे साथ गद्दारी की है, मेरी जान की प्यासी हो गई है। फिर आपने कहा कि ऐ मलऊन औरत, तूने अल्लाह के एक वली को, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे विलायत से नवाजा हुआ है, मगर मेरा राज मेरे इन गेसुओं में छुपाओ, मेरी ताकत का राज तूने मेरी ही ताकत से मुझको बांध दिया। आखिरकार इस जालिम औरत ने
अपने ही खावंद शौहर को अपने ही दुश्मनों के हवाले करके उनसे जेवरात और क्या नाम है पैसे उसूले, और दुश्मन के हाथ जब लगे तो उन लोगों ने आपको बांध दिया, आपके नाक, आपके कान, आपके हाथ, एक एक आज़ा आपको काट काट कर अजियतनाक सजा देते हुए आपको शहीद किया। समझ में? आपकी उम्र एक तवील थी, 1000 महीने से भी बहुत तवील उम्र आपने पाया। ये वाकया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बयान फरमा रहे थे तो असहाबे कराम के दिल में एक ख्याल गुजरा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि हम लोग तो इतनी उम्र भी नहीं पा सकते, हमारी तो उम्रें भी उतनी ज्यादा नहीं है, और ना ही हम इतनी इबादत कर सकते कि हजारों महीने जिहाद करें, रात भर का नाम कामुल लैल करें, है ना, इतनी उम्र हम नहीं पा सकते। तो हम उतनी नेकियां, जब आप उतनी उम्र नहीं पाएंगे तो उतनी नेकियां भी हमारे पास नहीं रहेगी। ये दिल में इनकी बातें इनके जुबान पे चली। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मतियों पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आई और उसने सूरह कद्र लेकर के जिब्रील अलैहि सलाम को वही की शक्ल में भेज दिया। सुभान अल्लाह। समझ आया जी कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम अपने गुलामों को, अपने सहाब को, अपने उम्मतियों को खबर दे दो कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के आखिरी अशरे के 5 रातों में, 5 ताक रातों में एक रात उसने ऐसी रखी है कि कोई अगर 1000 माह भी इबादत करे और उनकी एक शब की इबादत इन 1000 महीने की इबादत से अफजल है। समझ में आया? जी। इसमें सूफिया के लिए एक पहलू ये है कि जो हजारों दिगर अंबिया साबिकीन की जो उम्मतें हैं वो रियाजात जो हजार महीने कई साल रियाजत करते, अल्लाह तबारक व तआला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तुफैल अगर चंद मखसूस रातें ऐसी उनके लिए हैं कि उन रातों में अगर वो रियाजात कर लें, इबादत मुराकबात कर लें तो अल्लाह तबारक व तआला उनको वो उरूज जो अता फरमाता था जी, ये चंद लम्हों में, चंद रातों के अंदर ये उरूज पा सकते हैं। समझ आया? अब इसमें सबसे एक बारीक नुक्ता जो सूफिया के लिए है वो ये है, तनज़्ज़ुलुल मलाइकति वर्रूह जी, और फरिश्ते रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ नाजिल होते हैं, बरकत और रहमत तो खैर के साथ, है ना, एक खैर के साथ, बरकत के साथ फरिश्तों का नुज़ूल होता है जी, है ना। फरिश्तों का नुज़ूल होता है, जिब्रील, तमाम फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी नाजिल होते हैं, मगर सवाल एक ये है कि अगर वो आते हैं तो हमको दिखते क्यों नहीं है? हाँ, है ना। अब सूफिया और सालिकीन के लिए ये नुक्ता अहम है जी, है ना, कि आम लोग तो सिर्फ ये जान जाएं, है ना, शरीयत जानने का काम है, शरीयत आपने जान लिया और उस पे ज़ाहिरी अमल आपने कर लिया, मगर तरीकत जो है वो देखने का, मुशाहिदे का नाम है। क्या नाम है? प्रैक्टिकल है जी। वो थ्योरी है और ये प्रैक्टिकल है। अब सूफिया के लिए इसमें नुक्ता ये है कि फरिश्ते अगर नाजिल होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं? हमें दिखते क्यों नहीं? अब हमें वो आंख कैसे पैदा करना है कि फरिश्तों का नुज़ूल हो तो हम उनको देख सके जी, फरिश्तों का नुज़ूल हो तो हम उनको देख सकें। वो कैसे होगा? हाँ, वो एक सवाल पैदा होता कि ये होगा कैसे, वो आंखें हमको मिलेंगी कैसे? तो यो किसी मुर्शिदे कामिल, किसी रहबरे कामिल के खिदमत में रह के रियाजात की मंजिल से गुजरने के बाद, है ना, ही ये मंजिल हासिल की जा सकती है। तो सूफिया के लिए नुक्ता ये है कि अब मैं एक नुक्ता आपके दिमाग में पैदा कर छोड़ के जा रहा हूं, है ना, कि आम लोगों के लिए हुक्म तो ये है, उनके इल्म में बातें आ चुकी हैं कि फरिश्तों का नुज़ूल होता है। अब आप लोग ऐसी आंखें पैदा करो, आप ऐसी आंखें पैदा करो कि उनका आना तुमको दिखे जी, वरना आप खास नहीं हो। आम बात तो ये है कि फरिश्ते आते हैं, हर किसी ने जान लिया, आते हैं, यकीनन आते हैं, कोई दौरा नहीं है, मगर देखने वाले
कम ही लोग हैं, जी है ना। तो ये आंखें कहाँ से मिलेंगी? जब इन आंखों को आप रियाजात की भट्टी में तपा दोगे और इसके ऊपर जो हिजाब बशरी पड़ी हुई है, बशरियत के जो पर्दे पड़े हुए हैं, हिजाब जो पड़े हुए हैं, जब तक ये हिजाब नहीं हटेंगे तब तक के फरिश्तों का नुज़ूल आपको नहीं दिखेगा, तब तक आप नहीं उनको देख पाओगे। तो आप लोग ऐसी आंखें पैदा करें, हम ऐसी क्या नाम है कान पैदा करें, है ना, हम ऐसी कान पैदा करें, हम ऐसी आंख पैदा करें कि फरिश्तों का कलाम करना भी हमको सुनाई दे और उनका आना भी हमको दिखाई दे। समझ में आया? बिल्कुल। अवाम के लिए है और सूफिया के लिए है। शरीयत थेरी है और तरीकत प्रैक्टिकल है। तो आप सूफिया हो, खानका नशीन है, मगर इस मामले में अगर आप इस मंजिल तक नहीं हो तो आप खुद को महसूस करो कि आप किस दर्जे में हैं। कि बातें हैं तो हम कुछ भी कर लें, मगर हकीकत तो ये है। जी बिल्कुल पीर साहब, बहुत सारे लोगों का सबसे ज्यादा सवाल इसी चीज को लेकर के था और शायद ही कहीं से पता चला था अब तक का मुझे भी इसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ। तो आपने जहन को एकदम ताज़ा कर दिया ये कहकर। और कई सालिकत मेरे भाई बहनों का सवाल ये भी था कि मतलब क्या किया जाए इन रातों में। तो आपने तो एक नुक्ता छोड़ ही दिया है कि अगर खानका ही हो तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए, पर इसमें अमल के तौर पर अगर आप बताना चाहें कि क्या किया जाए। जी, इसमें जो है अब एक सवाल उसमें ये भी है कि शबे कद्र क्या सिर्फ एक ही रात है? जी ठीक है। जैसे अल्लाह तबारक व ताला ने अपने औलिया को बिखेर दिया आम मोमिनीन के अंदर, जी बात समझ में आ रही है? जी। जैसे अल्लाह तबारक व ताला ने आम लोगों को औलिया एक मोती के मिसल हैं। क्या है? मोती के मिसल हैं। जी। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बिखेर दिया आवामुन नास के अंदर, छुपे हुए हैं, ताकि औलियाए कराम को अल्लाह ने छुपा दिया है आम लोगों के अंदर, ताकि इन्हीं की बरकत से हर आम शख्स का भी आप एहतराम करो। समझ आया? जी। हर एक का अदब करो, हर एक से मोहब्बत करो। समझ में आया? औलिया ने यानी उसी एक के चक्कर में हर एक को एहतराम की नजर से आप देखो, तलाशो कि इसमें कौन अल्लाह का महबूब है। इसी तरह आखिरी अशरे की जो 10 रातों के अंदर जो ताक रातें हैं, उसके अंदर जो तलाशने का हुक्म है, उसमें 5 रातें 21, 23, 25, 27, 29। जी। अगर 29 मिलती है तो ठीक है जी। तो अब ये एक ही रात आप तलाश ना करें, यानी अब ये गोया कि 5 रातें, 5 रातों को आप जो है मुराकबात, रियाजात, मुजाहिदात और क्या नाम है इन सब चीजों के आप एहतमाम करें, मुराकिब हो जाएं। समझ में आ रहा है? अब उसके कुछ हिस्से आप तकसीम कर सकते हैं कि कुछ काना पहले दुरूद शरीफ काना कुछ टाइम पढ़ लें, फिर कुरान पाक की तिलावत कर लें, मशाइखिन की अरवाह को इसाल करके फिर मुराकिब हो जाएं। समझ में? जी। कुछ आमाले बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर दुरूद व सलाम के नजराने भेज दें, उसके बाद तिलावत कुरान पाक कर लें, उसके बाद उसके असरार को तलाशने के लिए वो नजर पैदा करने की कोशिश करें जो आपके शेख ने आपको तालीम दिया है। समझ में आया? जी। अब आप मुराकिब हो जाएं, 2 घंटा 4 घंटा जितना भी क्या नाम है आप जो पूरी रात जो है ऐसे गुजारें अल्लाह की रहमत की तलाश के लिए। समझ में आया कि आप जब अपने दिल को अगर आईना बना चुके हैं तो यकीनन फरिश्तों का नुज़ूल आपके आईने दिल में जरूर रोशन होगा। अगर दिल आपका आईना बन चुका है तो अब रही बात कि इसमें 21, 23, 25, 27 और 29, एक सवाल आपका उसमें भी था कि औलियाए कराम, सूफियाए कराम किस रात को ज्यादा उसमें इबादत और किस रात को ज्यादा इशारा देते हैं कि वो कौन सी ही रात है। जी जी जी। तो जैसा कि मैंने पहले आपको जवाब दे दिया कि उस एक रात की तलाश के लिए आप ये 5 रातों के अंदर आप इबादत में लग जाओ। इसी बहाने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप रुजू रहो तकर्रुब इल्लाह के लिए। रही बात तमाम सूफिया, खासतौर पे औलिया कराम ने चूंकि
27 को ही ज्यादा इन लोगों ने गुमान करार दिया है। जी उसकी वजह यह है कि लैलतुल क़द्र का जिक्र सूरे कद्र के अंदर 3 मरतबा आया है। लफ्ज़ लैलतुल क़द्र समझ में आ रहा है जी। और लैलतुल क़द्र के अंदर लैलतुल क़द्र आप लिखो तो उसके अंदर 9 हरूफ बनते हैं। कितने बनते हैं? 9 हरूफ मिलके लैलतुल क़द्र का इसम बनता है जी। कितने हरूफ? 9। और ये लैलतुल क़द्र का लफ्ज कितनी मरतबा आया है? 3। तो 9 तरीक 27। समझ आया? तो इल्मुल आदाद के माहिरीन और सूफिया ने भी 27वीं शब को गालिब गुमान किया है। बाकी आप हर शब जो है लग जाएं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की तरफ रुजू हो जाएं, उसके तरफ अपने मन को मोड़ दें, है ना, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जरूर इसके फिज़ो बरकत से आप फैज़याब होंगे। जी पीर साहब, जैसे आपने तो बहुत सारी इबादत बता दी, कुछ भाइयों का और कुछ व्यूअर्स का ये भी सवाल था कि इनमें कुछ ऐसा खास अमल है अफजल, जैसे वजीफा, ऐसा कुछ खास पढ़ना होता है इस दिन में कुछ? देखिए, इसमें नवाफिल का एहतमाम बहुत सारे लोग मस्जिदों में ही सिर्फ जमा हो जाते हैं जी। तो आप एक चीज़ याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नफली इबादत जितने भी ज़्यादातर अपने घरों में अदा फरमाई है, ठीक है। तो आप लोग मस्जिदों में हुड़दंग मचाने से बेहतर है, अगर मस्जिदों की हुर्मत का ख्याल रखते हुए अगर मसाजिद में इबादत में लगे रहते हैं तो सुभान अल्लाह। अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो अपने अपने घरों में आज चंद लोग मिल बैठ करके अब रहो। याद रही बात कि नफल की, तो जिसके जिम्मे कज़ाए उम्री है उसके लिए कोई भी नफल नहीं है, समझा जी। तो इसके अंदर आप चाहें तो कुछ लोग कज़ाए उम्री कुछ टाइम अदा कर लें, और सूफिया जो मुराकबात करते रहते हैं तो उनके लिए तो सबसे गोल्डन चांस कह लीजिए, आप अपने आईने दिल के तरफ मुतवज्जे हो जाएं ताकि नुज़ूल मलाइका का मुशाहिदा कर सके। समझ आया जी। अपने अगर आईने दिल आपने, मैं तो यूं कहूंगा कि साल भर की आपकी रियाजत का इम्तिहान है कि आपने अपने दिल को कितना आईना बनाया है। अब आप देख लिए रात में, इन्हीं 5 रातों के अंदर अपने दिल को, आईने दिल को आप देखें कि आईना बना ला इलाहा इल्लल्लाह के नफी और इस्बात के ज़र्ब से, है ना, बनाया नहीं, 5 अनफाज के जिक्र से आपने दिल को अगर आईना बनाया है कि नहीं बनाया है। अब आप आज का नाम है ये 5 आखिरी शबों के अंदर, ताक रातों में 5 ताक शबों के अंदर आप अपने आईने दिल की तरफ बैठ जाएं। अगर नुज़ूल मलाइका है ना जी, अगर दिल आपका मिसले आईना हो चुका है तो हाथी सामने आवा या मच्छर नजर तो हर कोई आएगा जैसे आईने के सामने। तो आपने अगर अपने दिल को आईना बनाया हुआ है तो अब लग जाइए आजमाइश उसको चेक करने के लिए कि वाकई हमारा दिल आईना बन चुका है कि नहीं। अपने कल्ब की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, मुराकिब हो जाएं। समझ में आ रहा है? अगर नहीं बना है, नहीं हो पा रहा है ना, एक सवाल उसमें भी है कि क्या औलिया जान जाते हैं कि कौन सी शब है जी। यकीनन जान जाते हैं। कैसे? फरिश्तों के नुज़ूल से। दिल को उन्होंने आईना बनाया जी, और अपने ही दिल की तरफ मुतवज्जे हुए और फरिश्तों का नुज़ूल उस आईने दिल के अंदर उन्होंने देख लिया तो समझ गए यही है लैलतुल क़द्र। मतलब जितने सवाल थे, कई सारे सवाल थे, लेकिन सारे सवालों को भी सब मेरे बगैर पूछा आपने जवाब एक के बाद एक दे दिया। तो ऑलमोस्ट हमारे सवाल तो खत्म हो चुके हैं। और जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी को अभी भी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जैसे पहले बताया हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप सीधे शेख मोहतरम से रोज़मर्रा सवाल कर सकते हैं। पीर साहब, हमारी तरफ से तो सवाल जितने हमारी तरफ से थे उससे कहीं ज़्यादा हो गए, तो अगर कुछ आप दुआ इरशाद अगर फरमाना चाहें तो कर लेते हैं जी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तो मैं पैगाम मेरे तरफ से और देना ये चाहूँगा कि तमाम वो अफराद जो मुझसे चैनल के ज़रिए जुड़े हुए हैं, ये आखिरी जो 5 ताक रातों के अंदर रुजूए इल्लाह हो जाएं, है ना। और कहते हैं कि एक पहलवान जो होता है अपने शागिर्द को कितना सिखाता है, तो कभी कभी जब अखाड़े में उतारता है तो जानता है कि तुम्हारे अंदर कितना फन आया है। तो आप लोगों ने अब तक के जो हमारी बातों से क्या सीखा,
कि सिर्फ सुने दहने कान से बाएं से निकाल दिए कि कुछ अमल भी किए। अगर कुछ अमल भी किए हैं तो मुराकिब हो जाएं, इनका नाम है आखिरी 5 लाख रातों के अंदर। और मुझे अगर मुमकिन हो तो खबरें भी दे कि आपने क्या महसूस किया, क्या देखा, तो हमें भी खुशी होगी कि चलो हमारी कुछ मेहनत कोशिश जो हम कर रहे हैं रूहानियत की राह में, रूहानियत के लाइन में, तो कुछ बच्चे सीख रहे हैं, उस पर अमल करके बच्चे बच्चियां कर रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारा जो पैगाम है, हमारा जो मकसद है तसव्वुफ और रूहानियत को आम करना, मौला की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने खास तौर पे लैलतुल क़द्र के तुफ़ैल हमारे इस मकसद को पूरी दुनिया में मौला आम फरमाए और इसके मुआमिनीन जो हैं उनको भी परवरदिगार आलम कसीर तादाद में बढ़ाए। और जो बच्चे जिस भी सूरत में इसको का नाम है एक दूसरे को फैलाते हैं, नशर करते हैं, अल्लाह उन पर भी इसकी बरकत नाजिल फरमाए। खुसूसियत के साथ कुछ बच्चे हमारे हुरूफ तहजी की अमल कर रहे हैं, ज़कात निकाल रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला लैलतुल क़द्र की बरकतें उन पर भी नाजिल फरमाए। तमाम नाज़रीन सामीन जो जहाँ कहीं भी सुन रहे हो देख रहे हैं, उनमें कोई परेशान हो, बलाज़दा हो, अल्लाह तेरे इस मुक़द्दस रात के तुफ़ैल परवरदिगार आलम उनकी तमाम परेशानियां दफ़ा फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों की जो आदत है अल्लाह उससे हमको तौबा की तौफीक दे, हमारी बच्चियों को शर्म व हया दे। या अल्लाह उनके अंदर खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला तुफ़ैल आपके क्या नाम है इबादत का एक ज़र्रा भी अता फरमा दे। परवरदिगार आलम तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के तुफ़ैल उनको वो अपने खामिंद शौहरों की इताअत की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारे बच्चे जो नौजवान हैं अगर बेरोज़गार हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको रिज़्क़ हलाल नसीब